Yes. Okay, welcome dear students. We will see today action of active metals, action of active metals on aryl halide. Aryl halide. Yesterday we had seen action of active metals on alkyl halide, and in that case we had seen two reactions. One is addition of magnesium giving Grignard reagent, another is addition of sodium metal or reaction with sodium metal giving higher alkanes. That is what we had seen so far. Now we will see this reaction where we will have action of metal, sodium metal on aryl halide. तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं. We will take aryl halide ARX and sodium metal with alkyl halide RX. तो अब करना क्या है अपने को? We will take aryl halide, that is chlorobenzene or halogen substituted benzene. The simplest is chlorobenzene. React with sodium metal. We take here sodium metal, and with that we will take alkyl halide, that is methyl chloride, in presence of pure and dry ether as a solvent. They are reflux together. तो देखिए क्या है यहाँ पर. क्लोरोबेंजीन, aryl halide, we have chloromethane, alkyl halide, and with sodium metal, when heated together we get substituted benzene. Substituted benzene. And which group will be substituting here? Aryl group is substituting. So we get substituted benzene and we get methyl benzene, that is toluene. We get methyl benzene, CH3. Okay? And here twice NaCl. We get methyl benzene. We commonly call it as toluene. So methyl benzene we get, that is toluene. So what is happening here? Halogen is substituted by alkyl group. This is the reaction. Halogen of aryl halide, that is chlorobenzene, is substituted by alkyl group, that is methyl group, and we get here substituted benzene. This reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. हमने वर्ड सिंथेसिस कल पढ़े थे, बस उसी का कंटिन्यूएशन है Wurtz-Fittig reaction. है ना? तो क्या चेंज है? कल हमने वर्ड सिंथेसिस में क्या देखा था? अल्काइल हलाइड और सोडियम मेटल. आज वर्ड फिटिग रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि अल्काइल हलाइड तो है, उसके साथ अराइल हलाइड भी है. अल्काइल हलाइड and aryl halide both are reacted with sodium metal in presence of pure and dry ether
रिफ्लक्स करना है उसे, है ना, रिफ्लक्स करेंगे एंड in presence of sodium metal we get here what compound we are getting here substituted benzene, that is toluene. This reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. अब इसी में एक सेकेंड रिएक्शन और पॉसिबल है अगर हम दो अराइल ग्रुप ले लें. if we take two chlorobenzene molecule, है ना, सिमिलर टाइप, टू क्लोरोबेंजीन, ये एक क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन. ओके, सो व्हेन दे आर reflux in presence of pure and dry ether, हीट करना है, रिफ्लक्स करना है, प्योर एंड ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट. अब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्या रिमूवल हो जाएगा, ट्वाइस NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट, और हमें यहाँ पर मिलेगा डाइफिनाइल और बाइफिनाइल जिसको आप बोल सकते. So two phenyl ring are bonded together now. Earlier they were separate, और यहाँ पर ये दो फिनाइल रिंग ज्वाइन हो गई. We call it as biphenyl or diphenyl, one and the same thing. So this reaction of getting diphenyl is what we call as Fittig reaction. This reaction is known as Fittig reaction. Wurtz-Fittig में क्या किया था हमने, अल्काइल और अराइल को हीट किया था सोडियम के साथ, और यहाँ सिर्फ फिटिग्स रिएक्शन में बेटा क्या हो गया, दो सिमिलर फिनाइल ग्रुप, क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, 2 moles of chlorobenzene we have taken chlorobenzene, and then they are reflux with sodium metal in presence of pure and dry ether, we get biphenyl plus twice NaCl. We call this reaction as Fittig reaction. तो Wurtz-Fittig और Fittig reaction में डिफरेंस याद रखेंगे. अब ये तो हो गई reaction of aryl halide. Now we will see substitution reaction in aryl halide. Substitution reaction in aryl halide. So next aspect is substitution reactions in aryl halide. अराइल हलाइड में सब्स्टिट्यूशन, दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है ना, एक है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक. तो न्यूक्लियोफिलिक तो हमने बहुत सारा अभी तक पढ़ लिया अल्काइल हलाइड में, है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हलाइड में पॉसिबल है नहीं है, क्या कंडीशन लगती है, दैट वी विल डिस्कस हियर. सो कमिंग बैक टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड, एंड वी विल फर्स्ट सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction in aryl halide. अब एक अराइल हलाइड यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, that will help us in explanation for substitution reaction. What is nucleophilic substitution? यहाँ पर ये हेलोजन लिया, ये 3 pair of electron
तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बेंजीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन क्लोराइड जिसको बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अब क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, इसको देखते हैं। ओके, नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट nucleophilic substitution in alkyl halide is very difficult. It's very difficult. It is very difficult. It does not undergo SN1 and SN2 reaction. Why it is so difficult? Let us see. Okay, तो हमारा एम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, काय में? अल्काइल अराइल हलाइड में। लेकिन एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट this nucleophilic substitution reaction in aryl halide is very difficult. Even it does not show SN1 and SN2 reaction as we had seen in aryl halide. So please follow करेंगे आप। Why it is so difficult? Because of the two reasons. One is that it I'm sorry, aryl halide, it shows it get stabilize by resonance। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। It gets stabilized by resonance, and another is each carbon atom of benzene ring is sp2 hybridized. sp2 hybridized, it is more electronegative. So because of resonance and sp2 hybridization, this aryl halide or chlorobenzene is not favorable for nucleophilic substitution. Is not favorable for nucleophilic substitution because of these two reason. एक अब रेजोनेंस से कैसा होता है कि रेजोनेंस में क्या होता है कि लोन पेयर। अब रेजोनेंस को अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेलोजन, lone pair of electron of halogen is in conjugation with pi electrons of benzene ring, in conjugation with pi electron of benzene ring से मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, they can be in conjugation with the pi electron cloud of benzene ring and thereby get stabilized. तो अगर ये लोन पेयर freely available होती तो रिएक्ट ज्यादा करते थे, but this lone pair is in conjugation with pi electron of benzene ring, and that's why it becomes more stable. And more is the stability, less is the reactivity. So it becomes more stable and less reactive towards nucleophilic substitution. तो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन हो जाता है। एक पॉइंट आ गया आपका ये। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो CX बॉन्ड है, यानी ये जो X यानी Cl यानी हेलोजन, CX बॉन्ड लेंथ, अगर ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा
तो रिएक्शन पॉसिबल है ना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तो इसके जगह सब्स्टिट्यूशन Cl के जगह OH आ जाएगा, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज CH बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, CH bond length is shorter and it is found to be almost 169 picometer. CH bond length is shorter in aryl halide, in aryl halide, in aryl halide, and that's why it is difficult to break. अब अल्काइल हलाइड में क्या होता था? In alkyl halide what happens? In alkyl halide ये जो CH bond length है ये थोड़ी ज़्यादा है, it is found to be 177 picometer. तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता था अल्काइल हलाइड में, जबकि अराइल हलाइड में CH bond length is shorter and that's why bond becomes stronger. समझ रहे हैं फंडा? इसको समझ लेंगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है? पहला तो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बना कि ये जो यहाँ पर CX बॉन्ड है, दैट CX बॉन्ड इज हाईली स्टेबल because of shorter bond length, hence it does not get broken down. It needs more energy for breaking of bond. Next point है कि फिनाइल कैटायन, है ना। जैसे मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लूँ फिर से, ये बेंजीन रिंग और ये X यानी हैलोजन अपना, ये अराइल हैलाइड लिख लिया हमने। When this aryl halide is ionizes, इसका आयोनाइजेशन करते हैं, है ना। इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो काय में कन्वर्ट होगा? कैटायन और एनायन में। अब कैटायन क्या बनेगा? फिनाइल कैटायन बनेगा, और हैलोजन तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये फिनाइल ग्रुप जो है ये कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन जो मिला ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो फिनाइल ग्रुप इज व्हाट? फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। Now this phenyl cation is not stable as we get in the other compound. This phenyl cation is highly unstable. It is highly unstable and it quickly combine with anion, है ना। इसके साथ फट से कंबाइन हो जाएगा। अगर ये स्टेबलाइज होता, पॉजिटिव चार्ज रहता, तो दूसरा अपोजिट चार्ज वाला ग्रुप इस पे अटैक कर सकता था, लेकिन ये ऐसे फ्री स्टेट में अवेलेबल ही नहीं होता है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन मिला, दिस फिनाइल कार्बोकैटायन is not that much stable. As it is not that much stable, it quickly combines with other halogen ion, and इसके साथ immediate combine होगा, is highly unstable and does not get stabilized through resonance. अब बेसिकली यहाँ रेजोनेंस आ जाना चाहिए था, लेकिन रेजोनेंस आता नहीं है। क्यों नहीं आता रेजोनेंस? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे अंदर में, और ये पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस अप्लीकेबल नहीं होता। और रेजोनेंस जब अप्लीकेबल नहीं हुआ तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो ये फ्री स्टेट में रहेगा नहीं। जब ये फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, अनस्टेबल है, तो यहाँ पर SN1 नॉट पॉसिबल। आपको याद होगा कि SN1 टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म था। उसमें क्या होता था? फर्स्ट स्टेप में, जैसे मैं यहाँ पर जस्ट SN1 के लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वही वाला जो हमने डिस्कस किया था, है ना। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता क्या? नहीं। बैक साइड से अटैक कर सकता क्या? नहीं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो गई थी?
आयोनाइजेशन हो गया था, सेल्फ आयोनाइजेशन जिसको हमने कहा था। ये सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या मिलता था? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, है ना। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है, इसीलिए ये सेपरेट आउट कर सकते थे हम, और फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। लेकिन अराइल हैलाइड जब हम लेते हैं तो ये फिनाइल कैटायन इज नॉट गेटिंग स्टेबलाइज, इट इज नॉट गेटिंग बीइंग आइसोलेटेड, और जब ये आइसोलेट नहीं होगा तो SN1 पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर से एक बार, क्योंकि ये अराइल हैलाइड X है यहाँ पर। अब ये फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल होगा क्या? मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को फ्रंट और बैक साइड के हिसाब से लिख लेता हूँ, है ना। चलो जी, तो ये बेटा लिख दिया अराइल हैलाइड। अब न्यूक्लियोफाइल OH फ्रंट साइड से अटैक कर सकता क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं का पॉसिबल है? क्योंकि X उसके सामने है हेलोजन। बैक साइड से आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बेंजीन रिंग वहां पर तैयार बैठा हुआ है, तो फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है ना। ये फिनाइल ग्रुप तैयार बैठा है उसको रिपेल करने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में, है ना। तो न फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल, न बैक साइड अटैक पॉसिबल। तो SN1 कब होगा? जब उसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, और सेल्फ आयोनाइजेशन के बाद में जो कैटायन मिलेगा वो स्टेबल होना चाहिए, तब सेकंड स्टेप पॉसिबल होगा, जैसा कि हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में देखा था। यहाँ पर ये कैटायन कंपैरेटिवली स्टेबल था सेल्फ आयोनाइजेशन के बाद में, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं, इसीलिए SN1 पॉसिबल नहीं है। अब SN2 भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बैक साइड अटैक में, बैक साइड में क्या है? बेंजीन रिंग बैठा हुआ है, तो फ्रंट साइड अटैक नहीं, बैक साइड अटैक नहीं, इसीलिए ये SN1 SN2 दोनों भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता। दैट मीन्स अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है ना। दो कारण उसके अपन ध्यान में रखेंगे। एक तो रहेगा कि बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, सेकेंड बिकॉज each carbon in benzene is sp2 hybridized and thereby will not allow this CX bond to get broken down easily। तो और बॉन्ड लेंथ भी उसकी शॉर्टर है, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन है, आयोनाइजेशन करने के बाद ये फिनाइल कैटायन is highly unstable, does not get stabilized by resonance, hence SN1 SN2 both not possible with aryl halides। So it is quite difficult to carry out nucleophilic substitution reaction on aryl halide, but है ना, but there are some chances, है ना। However, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN करके लिख देता हूं। However, nucleophilic substitution is possible if क्या होगा? If benzene is substituted by some electron withdrawing group, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप such as NO2। हमने पढ़ा था 11th क्लास में, NO2 is an electron withdrawing group, it withdraw electron from the benzene ring because it has nitrogen and oxygen, both are highly electronegative and oxygen is more electronegative, it withdraw electron from the benzene ring। So this SN
this NO2 group if present in benzene present on benzene ring. तो क्या लिख रहे थे बेटा हम? However, SN is possible if benzene is substituted by some electron withdrawing group such as NO2 at ortho or para positions. आपको ortho and para position तो याद होगा. Ortho position, adjacent position and meta position are alternate position, whereas para position is parallel to the substituent, है ना. तो क्या होता है कि हमने ये अराइल हलाइड लिया, ये X अभी यहाँ लिखता हूं मैं, ये अराइल हलाइड, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कैरी आउट करना है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप like NO2 if present at ortho para. So these are the two ortho position and this one is the para position. तो क्या होगा तब substitution easily possible होगा. Let us take example here. We take chlorobenzene and we will substitute at ortho position one NO2 group, है ना. ऐसा ही अब देखते हैं कैसा डिफरेंस आपको समझ में आता है. देखते हैं ना, इसको इजीली समझ में आ जाएगा. NO2 ऑर्थो पोजीशन और NO2 एट पैरा पोजीशन. और थर्ड में क्या करते हैं कि हम एक और NO2 ग्रुप वहां बढ़ा देते हैं, बिकॉज वी हैव 3 सच पोजीशन, 2 ऑर्थो पोजीशन एंड 1 पैरा पोजीशन. सो 2 ऑर्थो पोजीशन NO2 and 1 para position NO2. So we have, एक ये सिंगल है, इस पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है because of the reason we had seen. अब अगर SN कैरी आउट करना है तो आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोनियम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, है ना. एसिड हाइड्रोलिसिस हाइड्रोनियम आयन से. तो हाइड्रोनियम आयंस जब इसको ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, OH आ जाएगा Cl की जगह पे. करेक्ट है. लेकिन स्पेशल कंडीशन है ना, ये स्पेशल कंडीशन है. इज पॉसिबल इफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, बट under some special condition. और वो कंडीशन क्या है ये देखते जाएंगे. some special condition. अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या हम इसे कहेंगे 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या पैरा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन or other name of this is what, 2 nitrochlorobenzene. 2 nitrochlorobenzene, first, second, third, fourth, fifth and sixth position. Okay. तो बेटा यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बट दिस इज पॉसिबल in presence of strong alkali like NaOH and at a temperature of 433 Kelvin. 433 Kelvin. This is possible. तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में स्ट्रिंजेंट कंडीशन. स्ट्रिंजेंट कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज करना है at 433 Kelvin, then this acid hydrolysis is possible and we get here this compound. You can name this compound very well. ये आता है OH. करेक्ट है.
तो व्हाट वी गेट पैरा नाइट्रो सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या बोलेंगे इसको, 2 नाइट्रोफिनॉल। सो वी गेट हियर दिस कंपाउंड। तो कहने की बात क्या कर रहे थे हम कि अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है, बट हम तो अब साइंटिस्ट लोग हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ तो कंडीशन ऐसी लगाते जाएंगे कि जिससे ये पॉसिबल हो। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या लगाया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा दिया तो थोड़ी इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगा। और ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, ये जो हेलोजन है, इसकी टेंडेंसी क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने ये एक ऑर्थो वाला डेरिवेटिव बनाया। अब ऑर्थो डेरिवेटिव से ज़्यादा स्टेबल जो रहेगा वो पैरा डेरिवेटिव होता है। तो ये एक पैरा नाइट्रो भी लगाते हैं और इस पे कंडीशन देखते हैं हम, तो क्या दिखता है कि पैरा पे डाइल्यूट NaOH चल जाएगा और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लगने वाला है, और ये टेम्परेचर उतना ही रखना पड़ेगा। तो हमें अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड मिलेगा हमको, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये मिला पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ऑर्थो इज डिफिकल्ट, पैरा इज सिंपलर हियर, ओके। तो ये ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में ये रिएक्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि ऑर्थो पैरा दोनों लगा देते हैं। यहाँ पर ऑर्थो पैरा लगाएंगे तो इसके लिए अब हमको डाइल्यूट या वीक बेस चलेगा, लाइक सोडियम कार्बोनेट है ना, वीक बेस चलेगा सोडियम कार्बोनेट एट ए टेम्परेचर ऑफ 403 केल्विन। देखो कंडीशन थोड़ी माइल्ड हो गई, अब ऊपर स्ट्रिंजेंट कंडीशन थी, स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी, अब दो सब्स्टिट्यूशन आ गए, दो सब्स्टिट्यूशन आ गए, तो वीक बेस कम टेम्परेचर में आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। और अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। बेटा इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, उतना इजी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। ऑर्थो पे रखेंगे, पैरा पे रखेंगे, ऑर्थो पैरा दोनों रख दिया। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख लेता हूँ, एंड छोटा सा लिखता हूँ सो दैट ज़्यादा नीचे नहीं होना पड़े, झुकना पड़े। तो ये अब क्या हो गया, ये 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सही है। और ये क्या था, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। चलो जी, लास्ट वाला जो रिएक्शन लिखा है आपको टाइम इसीलिए दिया है। अब इसमें तो क्या होता है, इतना इजीली रिएक्ट हो जाता है ना, इट रिएक्ट्स जस्ट अंडर वार्म कंडीशन। देखो अब कंडीशन और भी डाइल्यूट हो गई, और भी माइल्ड हो गई। पहले तो वीक बेस लिया, अब तो वीक बेस की भी जरूरत नहीं है, जस्ट वार्म करिए आप और उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये बेटा सब क्या समझाता है अपने को कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है,
on aryl halide. But if it is possible if we bring about some electron withdrawing group under specific condition. तो पैरा के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो स्ट्रॉन्ग बेस 433 केल्विन, आपने दो नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, डबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो जो एल्कली है वो वीक लग रही, टेम्परेचर कम हो गया। और अगर तीनों पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो जस्ट वार्म कीजिए और आपको फिनॉल मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अराइल हलाइड। करेक्ट है? Can we continue for 15 more minutes so that we can complete this topic today itself? So I request everyone to please rejoin for 15-20 more minutes. Okay? So everyone please follow back to the further discussion of aryl halide. So far we had seen it is not feasible under normal condition to bring about nucleophilic substitution. To bring about nucleophilic substitution, we need to have on aryl halide some electron withdrawing group like NO2 at ortho and para position under some special condition in presence of alkali and at high temperature ortho para substituted halobenzene can undergo nucleophilic substitution. So that part was of nucleophilic substitution. अब अराइल हलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग reagent. Those have affinity for electrons are known as electrophilic reagent. फिर से एक बार, electrophiles are what? Electrophilic reagent which have affinity for electron or electron seeking reagent. So aryl halides have halogen and these halogens are ring deactivating and ortho para directing. They are ring deactivating and ortho para directing. Means what? कि एक तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की उनकी टेंडेंसी है हेलोजन की, बिकॉज हेलोजन वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दे ऑलवेज ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन, बट बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट ओवर पावर कर लेता उसकी वो प्रॉपर्टी को। तो रेजोनेंस इफेक्ट जब ओवर पावर कर लेगा तो क्या होता है कि हेलोजन के कारण बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर 2, 3 and 4, they have high electron density at ortho para positions. Because of this high electron density क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। कौन सी पोजीशन पे करेंगे अटैक? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर, फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट, और उनको कौन सी पोजीशन पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है अराइल हलाइड में, बट हियर आल्सो वी नीड टू follow certain conditions in each electrophilic substitution. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN बोलते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SE बोलेंगे, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, हेलोजिनेशन। We will bring about halogenation of क्लोरोबेंजीन। तो फिर से हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल रहेगा क्लोरोबेंजीन। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, ये क्लोरोबेंजीन,
और इसे रिएक्ट करते हैं अब हम क्लोरीन से। वी रिएक्ट दिस विथ क्लोरीन in presence of anhydrous AlCl3 और FeCl3, है ना। in presence of AlCl3 और FeCl3 we carry out इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्लोरोबेंजीन हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब आ जाएगा। ओके, क्या होगा बेटा, कौन सी पोजीशन पे ये हेलोजन जाएगा? ये हेलोजन जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो हमें फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑर्थो डाइक्लोरो हो जाएगा, है ना। ऑर्थो पे क्लोरीन, ये ओरिजिनल वाला क्लोरीन, और वैसा ही यहाँ पर मिलेगा, पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा और ये पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेटिस्फाइड। तो इनकमिंग कहाँ पर आया? इनकमिंग आ गया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, करेक्ट। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन। अब प्लस ट्वाइस HCl वी नीड टू बैलेंस। तो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरा क्या होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्लस ट्वाइस HCl। तो electrophile attacks at ortho and para position giving a mixture of it, है ना। ये मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्थो डाइक्लोरो एंड पैरा डाइक्लोरो। इसमें ज़्यादा स्टेबल रहेगा पैरा डाइक्लोरो क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो ये हेलोजिनेशन हो गया। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम, नाइट्रेशन। वी विल कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो फिर से क्लोरोबेंजीन लिया हमने और उसका नाइट्रेशन करेंगे by using concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. The process is nitration. Okay, the second is nitration. First was halogenation, second was nitration. तो देखो फिर से क्लोरोबेंजीन लिया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। HNO3 को हमने लिखा है HONO2, करेक्ट है। वी हैव रिटन इट एज HONO2। अब HONO2 लिख दिया आपने तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये नाइट्रो ग्रुप लगाना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। तो पहले ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप और वैसा ही पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको आता है, क्या नोमेनक्लेचर होगा? व्हाट विल बी द नोमेनक्लेचर? वी गेट 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। सो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, या ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या होगा? 2। आइयो कैसा नोमेनक्लेचर किया हमने बेटा? एक मिनट। 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ओनली एंड दिस इज 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो डबल हो रहा था, रिपीट हो रहा था। सो 2 नाइट्रो chlorobenzene and this is 4 nitrochlorobenzene, 4 nitrochlorobenzene। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये नाइट्रेशन हो गया।
अब थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन कैरी आउट करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रेशन बेटा कैसे कैरी आउट किया था? यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 से. अब सल्फोनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, तो फिर से यहाँ हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं. ये क्लोरोबेंजीन लिया. वी विल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को भी लिखते हैं HOSO3H कॉन्सेंट्रेटेड. इसे हीट करेंगे. फिर से आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप मिलेगा, है ना. तो सल्फोनिक ग्रुप अटैच करो SO3H, विच इज द सल्फोनिक ग्रुप SO3H. यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या मिलते जाएगा? वाटर मिलेगा आपको, है ना. यू विल गेट वाटर इन नाइट्रेशन, you will get water in sulfonation as a side product. तो ये क्लोरोबेंजीन और ऑर्थो पोजीशन पे SO3H और वैसे ही पैरा पोजीशन पे SO3H. तो पैरा पोजीशन पे भी SO3H लगा देंगे, SO3H. अब यहाँ नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बदल जाएगा. नोमेनक्लेचर बदलेगा क्या? हमने लिया तो है क्लोरोबेंजीन, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं सल्फोनिक ग्रुप का, इसीलिए रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन. लेकिन ये सल्फोनिक ग्रुप जो है ये स्ट्रॉन्ग हायर सल्फ फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू क्लोरीन. करेक्ट है. तो इसे क्या देंगे? ये क्लोरोबेंजीन सल्फ यानी 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना. तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक, क्लोरोबेंजीन नहीं बोलेंगे अब इसे, है ना. 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब ये क्लोरोबेंजीन नहीं है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. तो 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 4-क्लोरो. ये 1-क्लोरो नहीं होना चाहिए बेटा, इट हैज टू बी 2-क्लोरो, है ना. इट हैज टू बी, आपके टेक्स्ट बुक में ये रॉन्गली प्रिंटेड है. ये 1 2 3 4 5 and 6. It has to be 2-chloro-benzene sulfonic acid and this has to be 4-chloro-benzene sulfonic acid. करेक्शन कर लेंगे यहाँ, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है वो सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन देंगे हम और क्लोरो को सेकंड और फोर्थ पोजीशन देंगे. तो 2-chloro-benzene sulfonic acid and 4-chloro-benzene sulfonic acid ये मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है ना. तो दिस वी गेट इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर. इसमें स्टेबल कौन सा होता है? पैरा वाला. तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है. तो ये हो गया सल्फोनेशन. अब सल्फोनेशन के बाद में हम देखते हैं फ्रिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन. अब फ्रिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से कैरी आउट करते हैं. एक होता है फ्रिडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रिडिल-क्राफ्ट एसिलेशन. तो करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन फ्रिडिल-क्राफ्ट. फ्राइडल-क्राफ्ट. फ्राई दाल है ये अपने लिए. तो फ्रिडिल-क्राफ्ट पहले पढ़ते हैं अल्काइलेशन, है ना. फोर्थ का ए पार्ट फ्रिडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. उसके लिए क्या करना है? फिर से क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं. वी रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड.
CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3. अब फिर से क्या होगा? This methyl group goes at ortho and para position. It goes at ortho and para position. So ये Cl की अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ऑर्थो पे CH3 आ गया, वैसा ही पैरा पोजीशन पे भी CH3 आ जाएगा. Para will also get CH3. तो क्या नोमेनक्लेचर मिल जाएगा इसका? 1 क्लोरोटोलिन एंड 2 क्लोरोटोलिन, 4 क्लोरोटोलिन. तो यहाँ फिर से गलती हुई है, 1 क्लोरो नहीं, इट हैज टू बी 2 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन. जब इसे 4 क्लोरो कह रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ एंड सिक्स. और जब आपने ये CH3 को 1 दिया है तो इसे 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसा नंबर करना पड़ेगा. करेक्ट है? तो दिस इज 2 क्लोरोटोलिन and this is 4 chlorotoluene. So alkyl group is coming at ortho and para position. We call it as Friedel-Crafts alkylation. Fourth की B reaction, Friedel-Crafts acylation. Acetyl group comes at ortho and para position. Friedel-Crafts acylation. उसके लिए किसके साथ रिएक्ट करना होगा? एसिटिल क्लोराइड के साथ में, है ना? We have to react with एसिटिल क्लोराइड. तो यहाँ पर देते हैं हम, यहाँ देते हैं फिर से क्लोरोबेंजीन और उसे रिएक्ट करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में. Acetyl chloride. This compound is acetyl chloride. Correct? Acetyl chloride बेटा फॉर्मूला क्या है? CH3COCl. This group is acetyl group. It goes to ortho and para position. Ortho and para position. Once again एसिटिल क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. तो ये कैटलिस्ट जरूरी है, अनहाइड्रस AlCl3. फिर से आपको 2 डेरिवेटिव मिलने वाले हैं, एक ऑर्थो डेरिवेटिव मिलेगा और एक पैरा डेरिवेटिव मिलेगा. ऑर्थो डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर 2 क्लोरोएसिटोफिनो, पैरा डेरिवेटिव 4 क्लोरोएसिटोफिनोल. देखिए एसिटिल ग्रुप कहाँ जा रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरोएसिटोफिनोल या ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोल एंड दिस विल बी 4 क्लोरोएसिटोफिनोल. So 4 substitution, electrophilic substitution reaction, 4 electrophilic substitution reaction. Okay? तो ये है electrophilic substitution on aryl halide. First is halogenation. कैसे कैरी आउट किया आपने? क्लोरीन से. Second substitution reaction. This is with concentrated nitric acid. हम क्या करेंगे? नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप. थर्ड इज सल्फोनेशन यूजिंग concentrated sulfuric acid. और कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होने वाला है ऑर्थो पे? सल्फोनिक ग्रुप
सब्स्टिट्यूट होने वाला है। थर्ड इज सल्फोनेशन। फोर्थ इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन के लिए कंपाउंड का यूज करेंगे मिथाइल क्लोराइड। उसमें ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, एंड वी गेट हियर वंस अगेन the two derivatives in a form of mixture plus twice HCl मिल जाएगा यहाँ पर आपको साइड प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड फोर्थ का सेकेंड पार्ट है फोर्थ बी फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। एसिलेशन के लिए आप कंपाउंड क्या यूज करेंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl। इसमें से ये एसिटिल ग्रुप है, इसको फोकस करो, है ना, प्रॉपर फॉर्मूला लिखो। CH3COCl में से ये एसिटिल ग्रुप फिर से कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और आपको यहाँ भी साइड प्रोडक्ट HCl ही मिलने वाला है ना। तो ऑर्थो पे एसिटिल ग्रुप गया, 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, पैरा पे एसिटिल ग्रुप गया, 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। तो ये 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं हम, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो चलिए असाइनमेंट के क्वेश्चन लिखते हैं, आपको लिखना है it is difficult to bring about nucleophilic substitution reactions in aryl halide. Give reasons. Give reasons. Give reason के बदले explain with reason. Explain with reasons. तो give reason में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। One is resonance, another is sp2 hybridization of carbon. सिर्फ give होता। अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, है ना, लॉन्ग आंसर बन गया। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हलाइड, एक्सप्लेन विद रीजंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू, हाँ जी, अब ये देखेंगे, इनटू डाइक्लोरोबेंजीन। कैसे लिखना है आप डिसाइड करें थोड़ा सा। डाइक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, थर्ड क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड फोर्थ क्लोरोटोलिन, and next is chloroacetophenol। यानी आपको जो हमने ये 5 रिएक्शंस पढ़ा के दिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो रिएक्शंस यहाँ पर लिखना है आपको आंसर में। और मैंने कहा टेक्स्ट बुक एक अलग से नोटबुक बनानी है और उसमें ये सारे असाइनमेंट डेट वाइज आपको सॉल्व करना है। जब आप आएंगे तब हम आपसे ये रजिस्टर मांग के चेक करके वापस देंगे, और वैसा हम आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट भी करेंगे कि ये तारीख को ये असाइनमेंट था और बच्चों ने ऐसा ऐसा असाइनमेंट सॉल्व किया है। तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग में
हम वैसा आपका रजिस्टर रखेंगे फिर, है ना। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। चलिए कल मिलते हैं बेटा, विल कंटिन्यू टू